यू आर इन द मार्केट फ्रॉम अर्ली 90s, आपने बहुत सारे बुल एंड बेयर साइकिल देखे होंगे। आज के इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? This market is like a more of a mind game. Look at what happened in gold and silver this year. They have been rallying from September 2024 onwards. But exactly at the peak of the cycle, first quarter of 2026, maximum people were sucked in. सर, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अर्निंग्स ग्रोथ या वैल्यूएशंस देखते हैं, बट यू फोकस अ लॉट ऑन लिक्विडिटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? डू यू थिंक लिक्विडिटी कैन बी मोर पावरफुल देन वैल्यूएशंस? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बाजार में लिक्विडिटी नहीं है। सडनली कोई आईपीओ आया, उसमें बहुत बड़ा डिमांड आ गया, तो पैसा कहाँ से आता है? जब बाजार में तेजी आती है तो छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है, और जब बाजार में मंदी आती है तो जमीन फाड़ के शेयर निकलते हैं। इतनी सप्लाई आती है। इफ यू हैव टू कंपेयर एसआईएफ विद म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, दो चीज़ें समझना है। ओके, पहली बात तो Hello everyone, welcome to Dhan's podcast. Today with us we have Mr. Sandeep Tandon, who is the CIO and founder of Quant Mutual Fund. Thank you so much sir for doing this. थैंक्स संदेश फॉर कमिंग टू आवर ऑफिस। सर, यूजुअली हम लोग जर्नी वगैरह के बारे में बात करते हैं, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई हैव वन क्वेश्चन। सिंस यू आर इन द मार्केट फ्रॉम अर्ली 90s, आपने बहुत सारे बुल एंड बेयर साइकिल देखे होंगे। व्हाट डू यू थिंक कि आज के इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? See, the misconception is, I'll put it in a very simple manner. This business or this market is like a more of a mind game, where people get sucked virtually at the peak of the cycle, and they get capitulated at the bottom of the cycle. Okay, like look at this rally from 2020. Okay, it peaked out somewhere in September 2024. But if you really look at 2024, the mutual fund perspective or individual perspective, okay, a lot of people who have not participated, okay, so the peak of the cycle, their risk appetite is highest, and everybody is a long-term investor, okay, which in the reality it is not, okay, because the excitement level is so high. Look at what happened in gold and silver this year, okay. They have been rallying from November 2000 or September 2024 onwards, okay. But exactly at the peak of the cycle, January 2026, or plus minus 2 months, so let's say end 2025 and first quarter of 2026, maximum people were sucked in, okay, which was virtually at the peak, So we observe these things through our own proprietary indicator, like behavior indicator, how euphoria get built, okay. This was not a classic sign of manic movement, but these were euphoric movements, okay. Let's say what happened very recently in Korea, Taiwan, these are euphoric moment, okay. Everybody is selling everything else and participating in these markets, or earlier they was participating in the gold and silver in India, and maybe in 2024 in equities. So I think learning perspective, the only thing what I have to say, every retail investor has to assess their own risk appetite, their own investment needs, and their own investment horizon. It's a very individualistic trait, okay. Now your needs can be very different from my needs. Let's say I already have a house, so I don't have to plan for a house, okay. So a lot of people come to Bombay, they don't have a house, okay. Then they have to struggle for the first house. So it's a very need specific thing, okay. And I always tell a lot of people, you go back and analyze how you have reacted in Harshad period, 92, 93, that period, 91, 90, how you reacted in 2000 dot-com bubble, how you reacted in, let's say, GFC1, the liquidity Lehman crisis, which people have seen, how you reacted in November or December 2018, or how you reacted in, let's say, in March, April of 2020 when COVID hit us. It is your own behavior will give you perspective whether you have a high risk appetite or low risk appetite or moderate. And what is your investment horizon? If you are one person who looks at your portfolio NAV on daily basis, okay, and if it disturbs you, it means you are not a long-term investor. Your risk appetite you think is high, is actually on the lower side, because you are more worried about one-day movement itself, okay. So I think it's a characteristic of an individual which people have to assess. Neither any wealth manager will able to help you, nor any software will able to give you that perspective. It's up to you how you decide. Once you understand your characteristic well, then you can do a better investing, because you have understood your own perspective before you come to the market. I think setting the right expectations is very important. Okay. Sir, you basically talk about कि markets are not efficient but adaptive.
एंड सिंस यू मैंशन अबाउट कोविड या फिर .com बबल, हर्षद मेहता क्रैश, आपको क्या लगता है कि कौन सा फेज़ या कौन सा इवेंट है जहाँ पे कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स काम नहीं करते हैं मार्केट में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मैटर है। ओके, हम लोगों को कुछ चीज़ें गलत सिखा दी गई है। ओके, और हमने कुछ चीज़ें गलत सीख ली हैं। ओके, मैं इसलिए बोलता हूँ इस चीज़ को कि कोई चीज़ का रेलेवेंस उस समय था तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव थी। ओके, और देखिए दुनिया बहुत चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। ओके, जिससे अपने बात करी एफिशिएंट मार्केट की। ओके, वो पर्सपेक्टिव बहुत अलग था। आज मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि वो थीसिस, आई एम नॉट सेइंग बोगस है, एफिशिएंट नहीं है। ओके, जो उसका नाम ही रखा। आज हम लोग क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं एडेप्टिव की। ओके, अगर बिग मैक्रो एनवायरनमेंट देखें तो क्या चल रहा है आपका, सुबह रात में कुछ है, सुबह एनवायरनमेंट अलग होता है। करेक्ट, 2 दिन के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। तो अगर आप वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपका रेलेवेंस नहीं रहेगा। वो फेज़ जा चुका है जो लोग बोलते थे कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को, गोल्ड ऊपर गया कि क्रिप्टो ऊपर गया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बट हकीकत ये है, जहाँ 20% का इम्पैक्ट आता है वहाँ लोग गिव अप मार देते हैं। तो वो एकेडमिक एक्सरसाइज रह जाती है कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ, क्योंकि आपका रिस्क एपिटाइट था ही नहीं। ओके, और ये जो थीसिस है ना कि हमारा एनवायरनमेंट के चेंज के बिना हम सब चीज़ें लॉन्ग टर्म करेंगे। देखिए इंडिया, ये थीसिस कब इफेक्टिव थी, जब इंडिया इन्फेंसी स्टेज में था, इमर्जिंग मार्केट की इन्फेंसी स्टेज में था कि तो वो आप स्ट्रक्चर बुल रन में थे। ओके, ये छोटे मोटे डिप से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका पेनिट्रेशन था ही नहीं कैपिटल मार्केट का, सब कुछ फेयर वैल्यू से बहुत नीचे चल रहा था। तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे बनाए तो सब लोग बोलते हैं मेरा तो लॉन्ग टर्म है, बड़ा पैसा बना। आज हम एफिशिएंट वर्ल्ड में रहते हैं। मार्केट बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज हर तरह का एब्सर्ड प्राइस मूवमेंट स्टेबलाइज हो जाता है। ओके, तो हमें क्या अपने को समझना है कि प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अगर इतनी चीज़ें, अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि वी लिव इन अ वेरी डायनेमिक वर्ल्ड, डेटा इज चेंजिंग, व्हाई आवर मनी मैनेजमेंट स्टाइल विल बी स्टैटिक? It has to be dynamic, na? Yeah. So we are a very strong believer of dynamic style of money management. World is very dynamic. We are changing on minute to minute basis. If you don't adopt some of these changes in your real life, and then I'm saying you're a very theoretical person. You have to have very pragmatic way of doing things. Okay? So pragmatic institute of money management के student हैं हम लोग. So we try to adopt lot of things. कि जो environment है आपके आसपास, उस चीज़ों को अगर आप समझ पाएंगे तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आप जनरेट कर पाएंगे। सर, आपने बोला कि यू ऑपरेट इन अ वेरी डायनेमिक वे, और हमने देखा है कि जैसे आपका जो स्मॉल कैप फंड है उसका जो टर्नओवर रेशियो दैट इज़ अराउंड 6 times और इंडस्ट्री वुड बी अराउंड 0.50 और समथिंग लाइक दैट। सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहाँ पे पिछले 18 months में जो आपका स्पेसिफिक VLRT सिग्नल है, वहाँ पे मान लो कि सिग्नल आया है कि आपको एग्जिट करना है, और या तो आपने एग्जिट किया है या फिर उसको ओवरराइड किया है, तो व्हाट वाज द लर्निंग फ्रॉम दैट? देखिए, पहली बात तो ये जो थीसिस है ना, इसको मैं बोगस थीसिस बोलता है कि टर्नओवर ज़्यादा है। ये गलत चीज़ें हैं। आपको कुछ रॉन्ग मिथ्स बताए गए हैं कि टर्नओवर कम होना चाहिए तो अच्छा है। कोई मैथमेटिकली प्रूव होता है कि टर्नओवर कम करने से रिटर्न ज़्यादा आता है क्या? देखिए, हम लोग समझ में चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस है रिस्क का। ओके, रिटर्न्स आर बाई प्रोडक्ट। तो वी से वेरी प्राउडली वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाई प्रोडक्ट। ओके, हमको मैथमेटिकली क्या देखना है, हमें रिटर्न्स देखना है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं लोग और रिलेटिव देखते हैं, व्हिच इज करेक्ट। बट हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं लेते हैं कि 2 फंड ने सिमिलर रिटर्न दिए बट उसका रिस्क मैट्रिक्स क्या था वो हम कोई बात नहीं करते। हम कोई गलत चीज़ें बताइए कि टर्नओवर देख लो, ये टर्नओवर से क्या फ़र्क पड़ता है? पहले म्यूचुअल फंड तो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, तो हमको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, चर्न कम करके क्या आपका रिस्क कम हो जाता है? देखिए, जब मैं हर चीज़ रिस्क एंगल से समझाऊंगा। जैसे मेरा VLRT में, अब VLRT क्या है? इट्स अ रिस्क मिटिगेशन फ्रेमवर्क। V स्टैंड फॉर वैल्यूएशन एनालिटिक्स, L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी एनालिटिक्स, एंड R स्टैंड फॉर रिस्क एपेटाइट, एंड T स्टैंड फॉर timing analytics, not a trading tool. Okay, it's a timing analytics. Timing analytics is a risk tool. हम क्या कर रहे हैं, जब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक तरफ स्क्यूड दिखते हैं तो मेरा रिस्क कम होता है। गेम प्रोबेबिलिटीज का है।
कोई इवेंट होने की अगर प्रोबेबिलिटी हाई दिखती है मैथमेटिकली तो हम वो ट्रेड लेंगे, ओके। और कोई चीज़ की विनिंग कैपेबिलिटी कम दिखती है तो वो ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, ओके। पूरा गेम तो सिंपल मैथ्स का है, ओके। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो पूरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मॉडल है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी आर नॉट सेइंग दिस इज परफेक्ट मॉडल, ओके। सो हमारा जो थीसिस है ये डिटर्मिनिस्टिक साइंस नहीं है। हम लोग बोलते हैं वीआरटी या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का जो फ्रेमवर्क है वो डिटर्मिनिस्टिक साइंस नहीं है, इट इज़ प्रिडिक्टिव साइंस। तो हम प्रिडिक्ट करते हैं मैथमेटिकली, ओके। और हम लोग 72% टाइम ठीक होते हैं, 28% टाइम हिस्टोरिकली गलत होते हैं, ओके। अब 100% हो जाएंगे तो गॉड स्टेटस हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन के लिए, ओके। तो हम लोग मैथमेटिकली उसको डीकोड करते हैं, रिस्क को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। पूरा गेम देखिए रिस्क के आसपास, और रिस्क का एक बिजनेस है ना, यू हैव टू बी अहेड ऑफ द in terms of taking a call, from a risk perspective you have to be ahead of the curve, you can't be behind the curve. फिर पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है, वो रिस्क ऑन पीरियड था, अरे वो रिस्क ऑफ पीरियड था, ओके। फिर वो एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाता है, फिर वो तो जर्नलिस्ट वाला रोल हो जाएगा, फिर ऐसे मनी मैनेजर। हम लोगों का तो स्पेशलाइजेशन है, हमें तो वही चीज़ सिखाई गई है और वही चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं कि रिस्क को कैसे कम करना है, कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स कैसे बनाने का है, वो मैथ्स पे हम लोग पूरा प्ले करते हैं, ओके। अगर आप रिस्क का नंबर इग्नोर कर देंगे और ये सब थीसिस में आ जाए कि टर्नओवर कितना है, ओके, तो उसका आंसर नहीं है, ओके। उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कोई भी मैथमेटिकली आके मेरे को प्रूव कर दे कि भाई लो टर्नओवर से रिटर्न ज़्यादा आता है, तो फिर हम सरेंडर कर देते हैं ये थीसिस को। मेक सेंस। तो ऐसे भी होता है, मान लो कि अगर काफ़ी ज़्यादा मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं तो डज योर सिस्टम जनरेट मोर सिग्नल्स देन यूजुअल? करेक्ट। अगर वर्ल्ड इतना डायनेमिक है और सुबह से शाम का ट्रम्प के स्टेटमेंट पे चेंज हो जाता है, तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सबको समझनी चाहिए कि मार्केट चलता है नरेटिव्स पे, ओके। चाहे वो ट्रम्प का स्टेटमेंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रंट पेज आर्टिकल हो, CNBC का कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो, इस तरह से लोग नरेटिव में कैरिड अवे। और हम ऐसा एनालिस्ट उसको क्या देखते हैं कि नरेटिव जो भी है रियलिटी क्या है। जिस दिन आप नरेटिव और को रियलिटी के फिल्टर से डाइसेक्ट कर पाओगे तो आपको आंसर मिलेंगे, ओके। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम हर चीज़ ठीक कर पाते हैं, बट अटेम्प्ट होता है कि भाई ये नरेटिव है, ओके। और अभी तो AI वर्ल्ड में है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नरेटिव क्रिएट हो जाते हैं, ओके, जो रियलिटी नहीं है वो भी आपको दिखा दी जाती है कि ये तो रियल है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो अगर सिंपल सी मैथ्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अब ये स्टेटमेंट कहाँ से आता है कि आपको उसका क्रक्स समझने का है, क्या मैसेज है उसके अंदर। ऐसा आपको नरेटिव और रियलिटी में डिफरेंस क्या है वो हमको देखना चाहिए कि ये एक्सट्रीम एंड पर नरेटिव बिल्ड हुआ है, ये रियलिटी से बहुत दूर है, ओके। तो जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि नोन रिस्क है या अननोन रिस्क है, ओके, नोन अननोन रिस्क के बीच में एक परसीव रिस्क भी होता है, ओके, जो नोन रिस्क में भी कन्वर्ट हो सकता है और अननोन रिस्क में भी। तो हम परसीव रिस्क को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि वो रिस्क क्या परसीव हो रहा है, क्या बिल्ड रिस्क हो रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ एग्जैक्ट रिस्क में, लेकिन परसीव तो मार्केट ने किया ना उसको। मार्केट नैरेटिव में चलता है, तो परसीव रिस्क की इंपॉर्टेंट आज के जमाने में नोन अननोन रिस्क से ज्यादा है, और उसकी कोई बात नहीं करता है। मेक सेंस। ऑल्सो अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो कुछ टाइम पहले आपने कॉशन दिखाया था स्मॉल कैप्स में, एंड देन यू टोल्ड कि कुछ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ है। तो व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड इन द फ्रेमवर्क की? देखिए, हम लोग करीब जुलाई 2024 से कॉशियस हो गए थे, ओके, माइल्डली कॉशियस। सितंबर 2024 से आते हैं we said that is a risk off period, and India cycle macro high frequency indicators are disturbing. We were first to downgrade India, okay. मार्केट भले सितंबर में पीक आउट हुआ, जुलाई में नहीं हुआ, उसके कारण हमको थोड़ा इम्पैक्ट भी आया अंडर परफॉर्मेंस का, बट वो इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क आपने पहले एसेस किया, ठीक है। हम लोग पहले बता के गए थे रिस्क है। उस समय बेस्ट ऑफ द एनालिस्ट की अपग्रेड्स आ रहे थे, और अभी हम 1 अप्रैल को हम लोगों ने कॉल लिया, इट्स द टाइम टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, नॉट गेट कैपिचुलेटेड। इट मीन्स, और हमने बहुत ओपनली लिखा, यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्टिव है, और हमने बहुत 2 साल बाद स्मॉल कैप में कंस्ट्रक्टिव होने की बात करी, ओके। और ये भी बहुत मल्टीपल चैनल्स पे, कॉन्फ्रेंस पे हमने बोला कि माइक्रो कैप विल आउट परफॉर्म स्मॉल कैप, स्मॉल विल आउट परफॉर्म मिड, एंड मिड विल आउट परफॉर्म लार्ज,
तो ये एक थीसिस हमने देखी, अगर आप देखेंगे लास्ट 2 महीने में ये थीसिस प्ले आउट हुई। ओके, अब ये थीसिस हमने 1 अप्रैल को लिखा और बोला, तो उसकी इम्पोर्टेंस है। आज 2 महीने बाद तो हर आदमी बोल सकता है कि हाँ ऐसा हुआ। ओके, तो आप उस चीज़ को फोर्सी नहीं कर पाए तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। हम लोग उसको फोर्सी करके प्रिडिक्ट करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलते हैं कि हम लोग हर चीज़ ठीक नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं। नंबर्स का गेम है ये। 28% टाइम रॉन्ग भी होते हैं, बट अगर हम 72% टाइम ठीक होते हैं तो हमको एज बहुत बड़ा मिलता है। ओके, तो हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के स्टूडेंट हैं, पोस्टमार्टम एनालिटिक्स नहीं करते हैं, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। गॉट इट। सर, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अर्निंग्स ग्रोथ या वैल्यूएशंस देखते हैं, बट यू फोकस अ लॉट ऑन लिक्विडिटी। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? डू यू थिंक लिक्विडिटी कैन बी मोर पावरफुल देन वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स? नहीं, देखिए हम लोग क्या बात करते हैं लाइफ लाइन में कि लाइफ लाइन है। ओके, अब हमारा जो पूरा वीएलआरटी का फ्रेमवर्क कहाँ से आता है, हमारा एक कोर बिलीव है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फंडामेंटल आत्मा, लिक्विडिटी द प्राण एंड सेंटिमेंट्स द माया। हमको तीनों चीज़ें कैप्चर करनी है। जो लोग सिर्फ प्योर वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे काम करते हैं वो पूरा एनालिसिस अच्छे से कर नहीं पाते हैं कि लिक्विडिटी भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। आपका वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, लेकिन आपके घर में पैसा ही नहीं है आपकी जेब में, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके, या ऐसी सिचुएशन है कि आपका मन तो बहुत है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आपका पैसा कहीं और अटका हुआ है। और कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास लिक्विडिटी बहुत है, आपने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी, लिक्विडिटी बहुत एकदम से आ गई है, लेकिन वैल्यूएशन तो पीक पे है, तो आप पीक ऑफ द वैल्यूएशन पे आप पे हाईएस्ट लिक्विडिटी थी, तो जब साइकिल का टॉप होने वाला था आपने अपना लिक्विडिटी को डिप्लॉय किया। और उसी तरह सेंटिमेंट्स की इंपॉर्टेंट कि भाई मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। ओके, जब हमें इसको कैसे देखना, हमें इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में देखना है। अभी जैसे आज सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, आप उसको क्वांटिफाई कर पाते हो? मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। हम लोग क्वांट का नाम ही ये भी क्वांटिफाई एवरीथिंग। ओके, वेदर इज रिस्क एपिटाइट, वेदर इज लिक्विडिटी एनालिटिक्स और इवन वैल्यूएशन नंबर्स। तो हम कोई भी चीज़ को क्वांटिफाई करते हैं। ओके, हर चीज़ को क्वांटिफाई करना एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफिकल्ट होता है, तो हम रिलेटिव टर्म्स में भी उसको क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि रिलेटिव बेसिस पे इस तरह से उसको हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि हम साइकिल्स देखते हैं कि भाई 100 साल में, 1000 साल में, 500 साल में कैसा बिहेवियर रहा। ओके, जब हमको एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं कोई चीज़ के, तो हम उसका बेनिफिट लेते हैं। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि आज की तारीख में अगर हम बाजार लास्ट 2 महीने से देखें तो सेंटिमेंट्स खराब है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है। ओके, अब इस चीज़ को हमने एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह अपने मैथमेटिकली ढूंढा कि रिस्क एपिटाइट हैज़ बॉटम्ड आउट। ओके, कि लोगों ने गिव अप ही मार दिया है कि कुछ करना ही नहीं है मेरे को, इंडिया कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, सब लोग गिव अप, फॉरेनर्स ने गिव अप मार दिया, लार्ज फैमिली ऑफिस ने गिव अप मार दिया, बट इस बार रिटेल ने अभी तक गिव अप नहीं मारा। ओके, रिटेल ने गिव अप नहीं मारा अभी भी, वो थोड़ा मैच्योर हुआ। अगर जब कंसेंसस गिव अप मार चुकी है तो हमारे वो डेटा पॉइंट्स में आता है, इसलिए हमने एग्रेसिव कॉल लिया कि जब सब लोग गिव अप मार रहे हैं, दिस इज द टाइम टू रीबिल्ड योर एक्सपोजर। ओके, हम नहीं सोच रहे हैं कि ये बेस्ट है, हमने क्या बोला, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, बेस्ट इज येट टू कम। जब हमको ये समझ में आ गया कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, अगर वर्स्ट बिहाइंड हो गया है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं फेंस पे नहीं बैठूंगा। हम लोग के पास भी 15-20% कैश था, आज हमारे पास सिर्फ 2% कैश है या 1% कैश है, तो हमने डिप्लॉय किया, हमने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया। बहुत लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा कैश था, जो साल भर पहले बहुत अच्छा लगता था, और इतनी बड़ा कैश है तो ही इज अ विनर, बट वो सब फंड ने अंडर परफॉर्म किया जिसने बड़ा कैश रखा, क्योंकि जब राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी आई तो आपने डिप्लॉय नहीं किया, रादर आप और कैश इंक्रीज करके बैठ गए। एक तो वैल्यूएशन घट गए स्टॉक्स के, तो आपको कैश ऐसा परसेंटेज बढ़ गया, और कुछ लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि कॉल तो ठीक गई मेरी कैश रहने की, तो मैं और कैश बढ़ा देता हूँ। सर, क्योंकि आपका फंड इतना डायनेमिक है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको इतना कैश रखने की ज़रूरत भी कम ही पड़ती होगी, क्योंकि सिंस यू आर। नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में। लास्ट 2 साल में हमने कैश रखा था। ओके, बट जनरली हम लोग नहीं रखते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही होती है, बट लास्ट 1.5-2 साल में बाजार में इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा था। ओके, लिक्विडिटी ड्राई हो गई थी, ओवरऑल लिक्विडिटी जब कम हो जाती है तो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि बायर डिसअपियर हो गए थे, सिर्फ सेलर्स थे, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
तो उस सिचुएशन में हमारा भी थीसिस थी, यू जस्ट लाई लो। ज़रूरी नहीं है आपको हर टाइम फ्रंट फुट पे खेलना है, आपको बैक फुट पे भी खेलना आना चाहिए। ओके, कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना विकेट बचाना ज़रूरी है, इसी तरह रिस्क ऑफ में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। उस समय आप रिस्की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे। जब रिस्क ऑन का टाइम आता है तो हम हाई बीटा से खेलते हैं, जैसे अभी हमने बोला मिड एंड स्मॉल लेना चाहिए था। लास्ट 2 साल से मैं कॉशियस था, हमको उसका बेनिफिट मिला। क्या हम पूरी तरह बेनिफिट ले पाए? आंसर इज नो, नहीं ले पाए, क्योंकि मूव्स आर वेरी शार्प। आप उतना प्रोपोर्शनेट में शिफ्ट हम भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतना फास्ट मूव आएगा। हमको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिल गए थे, हमने किया, हमको इसलिए वी आर विनर इन दिस गेम। बट जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो फेंस पे बैठा था, देखते हैं, समझते हैं, उनकी गाड़ी छूट गई। गॉट इट। और सर आपको ऐसा भी लगता है कि वंस द AUM इज बिग इनफ, अल्फा जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, ये गलत मिथ है। मैंने हम लोग के स्मॉल कैप में, जब हम लोग का स्मॉल कैप था 27 लाख्स, तो ये क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था। फिर वो 1 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, 100, ओके, तो सेम अभी 30,000 करोड़ है। ओके, और मैं आपको अगर आप 2024 में साइकिल पीक आउट हो गई, उससे पहले अब जब भी देखेंगे कि जैसे जैसे AUM बढ़ा, आउट परफॉर्मेंस बढ़ी थी, घटी नहीं थी। ओके, तो देखिए यस, ये फैक्ट है कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है तो आपको चर्न करने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट ये माइंडसेट समझ लेना कि नहीं है अपॉर्चुनिटी, ये लेजी स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट है कि जब आपको करना नहीं है तो आप बोल देते हो पोर्टफोलियो बड़ा है। ओके, हमने 30,000 पोर्टफोलियो पे भी करके दिखाया, किसी का 60,000 करोड़ का फंड है, वो भी लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्म करा है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि हमने अकेले किया, कुछ और लोगों ने भी करके दिखाया। तो ये गलत मिथ है। यही सब मिथ हम लोग गलत समझते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि बड़े फंड से पैसा निकाल लेते हैं, छोटे फंड में डालते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे बेस्ट रिटर्न मिले। बट आई थिंक स्टॉक्स वगैरह खरीदने में लिक्विडिटी प्रॉब्लम स्टॉक्स वहाँ पे भी आती होगी एज योर फंड गेट्स बिगर। देखिए, इसलिए हम लोग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ करते हैं। अब डेरिवेटिव्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फ्यूचर्स मार्केट देखेंगे तो 5 to 20 टाइम्स की लिक्विडिटी होती है कैश मार्केट की। अगर ऑप्शन देखेंगे तो 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं? तो हम लोग डेरिवेटिव्स को भी यूज़ करते हैं। जैसे साइज बिल्ड होता है तो हमारा एक काफ़ी बड़ा एक्सपोजर डेरिवेटिव सेगमेंट में है। और देखिए, कैपिटल मार्केट में मार्केट का ब्रेथ और डेप्थ दोनों इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ या म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री ग्रोथ आइसोलेशन में है। म्यूचुअल फंड की ग्रोथ जो भी है वो आइसोलेशन में नहीं है। कैपिटल मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ है। नंबर ऑफ IPOs देखिए बढ़ रहे हैं। ओके, प्राइवेट इक्विटी के डाइवेस्टमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स के NFOs आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो अगर हम खाली म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है और मार्केट ग्रो नहीं हो रहा, तो आपका क्वेश्चन वैलिड है कि भाई लिक्विडिटी इतनी उस प्रपोर्शन में नहीं बिल्ड हो रही है जिस प्रपोर्शन में सब डिमांड आ रही है। ओके, या इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। बट यहाँ दोनों हो रहा है, तो वो चैलेंज दिखता नहीं। और वो एक ऐसा फेस हो सकता है कि एक क्वार्टर को या एक महीने को आपका कोई लिक्विडिटी टाइट हो सकती है। देखिए, मार्केट में हम हर तरह का एनवायरनमेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बाजार में लिक्विडिटी नहीं है, सडनली कोई IPO आया, उसमें बहुत बड़ा डिमांड आ गया, तो पैसा कहाँ से आता है? तो हम लोग, जैसे हमारा पूरा एक लिक्विडिटी एनालिटिक्स का जो फ्रेमवर्क है वो इस थीसिस पे बेस्ड है। इंटरेस्टिंग डेटा है। हम लोग बोलते हैं जब बाजार में तेजी आती है तो छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है, अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से पैसा आता है। और जब बाजार में मंदी आती है तो जमीन फाड़ के शेयर निकलते हैं। इतनी सप्लाई आती है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, आप सोच ही नहीं पाते हो, लगे अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा। जैसे लास्ट 2 साल से लोगों को लग रहा है कि FIs की सेलिंग अभी बंद होगी, अभी बंद होगी, लेकिन बंद ही नहीं होती है। ओके, तो बेयर मार्केट में ये थीसिस को हमको यूटिलाइज करना है। पूरी लिक्विडिटी एनालिटिक्स थीसिस इस कंसेप्ट पे बिल्ड है। इसलिए ये चीज़ समझना कि नहीं लिक्विडिटी है। ओके, अपॉर्चुनिटी होगी तो लिक्विडिटी अपने आप आ जाएगी। आई थिंक एक और अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, दैट इज़ SIF। आई थिंक यू गाइज हैव लॉन्च्ड SIF ऑल्सो, जहाँ पे यू कैन शॉर्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। और आपने बोला भी कि गोइंग फॉरवर्ड 40-50% ऑफ द एक्टिव इक्विटी AUM शायद SIFs में जाए। तो इफ़ यू हैव टू कंपेयर SIF विथ म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, 2 चीज़ें समझना है। ओके, पहली बात तो ये एंड और वाला मैटर नहीं है। ओके, SIF क्या है? SIF में सेबी ने हमको एक नेकेड शॉर्ट का ऑप्शन दिया है। ओके,
बेसिकली अगर इन सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो हमको रेगुलेटर ने अपने पोर्टफोलियो का बीटा मैनेज करने का ऑप्शन दे दिया है जो पहले नहीं था। ओके, अगर हम बात करें मिड और स्मॉल में क्या प्रॉब्लम आती है, जब बाजार चलता है तो सबको अच्छा रिटर्न मिड और स्मॉल से ही आता है, लेकिन जब बाजार खराब होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिड और स्मॉल पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका बीटा इंडेक्स से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें परसेंटेज राइज भी ज़्यादा आता है और परसेंटेज फॉल भी ज़्यादा आता है। अगर SIF में मेरे को 25% नेकेड शॉर्ट का ऑप्शन मिल गया, इट मीन्स कि हम शॉर्ट करके पैसा भी बना सकते हैं। पहले वो तो थिंकिंग नहीं थी, शॉर्ट करके पैसा तो सिर्फ ट्रेडर बनाते हैं, इन्वेस्टर नहीं बनाता है। लेकिन अगर कोई साइकिल आज जैसे हम देखें कि हमारे पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग हमको ख़राब लगता है तो हम अंडर वेट है मैन्युफैक्चरिंग में, और हम एक तरह से सर्विसेज के ऊपर या NBFC के ऊपर ओवरवेट्स हैं कि हमको ये करंट एनवायरनमेंट में, तो अगर मेरे को लॉन्ग शॉर्ट रन करना है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्ट ट्रेड करके भी पैसा बना सकता। आज मैं ऑटो एक साइकिल पीक आउट हो गई जैसे ऑटो की, लास्ट 2 साल से ऑटो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो आपको आज शॉर्ट करके भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला आपको वो एक अल्फा का अपॉर्चुनिटी आ गया जो नहीं थी पहले। दूसरी चीज़, मैं अपना रिस्क कट कर रहा हूँ, आपका बीटा मैनेज हो गया। ओके, अभी अगर इस थीसिस को हम समझें, जैसे आपके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, उसी तरह SIF को भी आप उसको एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड की तरह चलाना चाहें तो बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन उसमें हमको एडवांटेज नहीं है दूसरे प्रोडक्ट का। SIF में कैसा है कि अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप 100% लॉन्ग है जैसे, ठीक है, लेकिन अगर आपका व्यू नेगेटिव हुआ तो रेगुलेटर ने हमको क्या गाइडलाइंस दी हैं कि पहले आपको अपना लॉन्ग कट करना पड़ेगा, तब आप शॉर्ट पे जा सकते हो। ओके, क्योंकि हमें रेगुलेशन में लिवरेज अलाउड नहीं है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का क्या फियर है, लोगों को लगता है कि इसमें तो बहुत बड़ा हार जीत हो जाती है। वो हार जीत बहुत बड़ी तब होती है जब आपको लिवरेज का एंगल हो, अदरवाइज डेरिवेटिव तो एक रिस्क का टूल है ना, आपको रिस्क मिटिगेशन के टूल है कि आपने पुट खरीद लिया, कि आपने हेज कर लिया। ओके, आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो आप 100 रुपए का आपने हेज किया तो ट्रू हेजिंग है इफेक्टिवली। 2 मिनट हम बीटा को भूल जाते हैं, बट आपने 100 रुपए का पोर्टफोलियो और आपने 500 रुपए का शॉर्ट कर दिया तो आपने नेकेड शॉर्ट 400 करा। ओके, वो म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है। ओके, तो हमको रेगुलेशन के हिसाब से हमारा ग्रॉस एक्सपोजर कभी भी 100% के ऊपर नहीं जाएगा, विच मीन्स जो बाइंग का एक्सपोजर और शॉर्ट लॉन्ग एक्सपोजर और शॉर्ट एक्सपोजर मिला के 100 क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब इफेक्टिवली हम लिवरेज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा साइन है कि हमको रेगुलेशन ही अलाउ नहीं करता है आपको लिवरेज करने का। लिवरेज जब आप करेंगे तो उसमें आपका रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है कि आपने 5 टाइम लिवरेज किया या 3 टाइम लिवरेज किया। ओके, यहाँ पे हमारा एक रिस्क मिटिगेशन का फ्रेमवर्क बिल्ड हो गया। आज जैसे कल, जैसे मैं अपना एक छोटा एग्जाम्पल दूँ और हम अपना एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स कल बाजार गिरा था। ओके, सब 1.4%, 1.9%, मतलब 1% से 2% के बीच में मैक्सिमम इंडाइसेस डाउन थे। ठीक है, तो हमारा स्मॉल कैप भी डाउन था 1.4%, बट अगर वही मैं SIF का जो स्मिट पोर्टफोलियो शायद 0.6% ही डाउन था। ओके, तो क्या आपको क्लैरिटी मिली कि जब फॉल आया तो उसमें फॉल कम आया क्योंकि उसमें शॉर्ट पोजीशन भी थी। ओके, तो हमारा बीटा लो था पोर्टफोलियो का, इसलिए हमको इम्पैक्ट कम आया। ओके, और ये पूरी थीसिस में आप देखेंगे, अगर हम 4 महीने का रिटर्न देखें या 6 महीने में जो भी परफॉर्मेंस आई है, तो जब बाजार घटता है तो ये पोर्टफोलियो कम गिरते हैं क्योंकि आपका कहीं हेज एक्सपोजर है, कहीं आपने कॉल राइट करा है, कहीं आपने पुट बाई किया है, या आपने कहीं कुछ दूसरे स्टॉक को शॉर्ट किया है। तो एक रिस्क मिटिगेशन का टूल आपको मिल गया है, और ये एक मनी मैनेजर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग तो आइडेंटिफाई करे, वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई करे। तो आपको शॉर्ट से पहली बार अल्फा, आप तो रिस्क तो मिटिगेट कर रहे हो, बीटा तो कम कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट्स में भी आप पैसा कमाने की भी अपॉर्चुनिटी रखते हो, वो माइंडसेट अभी नहीं है जो आएगा। इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जैसे मैंने अपने मल्टीपल फोरम पे बोला कि अगर आप 10 साल का व्यू पूछोगे तो ये एक्टिव मनी मैनेजमेंट का 50% SIF में होगा, बट वो अभी नहीं होगा क्योंकि उसमें थोड़ा एजुकेशन है, बहुत लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। जैसे 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस लोगों का बिल्ड होगा तो फिर एक बड़ा एक आंधी की तरह पैसा शिफ्ट होगा वो स्पेस में। क्यों? लोगों को समझ में आएगा SIF के आने से एटलीस्ट इन्वेस्टर को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न समझ में आना शुरू होगा। जो अभी तक म्यूचुअल फंड में सिर्फ एब्सोल्यूट और रिलेटिव देखते थे, रिस्क एडजस्टेड देखते ही नहीं थे। इसमें जैसे ही SIF आया, रिस्क एडजस्टेड मेजर्स आ गए हैं,
और भी लोग डिस्प्ले करने हैं। हम लोग तो बहुत टाइम से अपनी फैक्ट शीट में म्यूचुअल फंड में भी देते हैं रिस्क एडजस्टेड नंबर्स, लेकिन ये कंसेप्ट आप पॉपुलरिटी गेन करेगा। अब जैसे लास्ट 2 साल पहले ये प्रोडक्ट आया होता है तो ऐसा आउट परफॉर्म करता है म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। बट हम इसको स्क्यूमेस में नहीं देखते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि आपका 50% SIF में रखिए और 50% म्यूचुअल फंड में रखिए, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस अच्छा करेगा। ओके, रिस्क ऑन पीरियड में होगा तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, लॉन्ग पोर्टफोलियो ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, और जब डिफिकल्ट टाइम होगा या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा या वॉलेटाइल फेस होगा या रेंज बाउंड मार्केट होगा तो SIF आपको बेटर रिटर्न देगा। तो अगर आपका दोनों का वेटेज है तो आपको पोर्टफोलियो में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर आएगा, आपके ड्रॉडाउन्स कम होंगे, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी कम होगा, इट विल गिव यू पीस। ओके, क्योंकि एक बार वेल्थ क्रिएट हो जाती है तो वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ग्लोबली ये वेल्थ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं और इसको बहुत मतलब रिस्पेक्ट मिलती है ग्लोबली। इसे इंडिया में लोग हेज फंड को नकार देते हैं। हेज फंड मीन्स समथिंग नॉट राइट, यू नो, पीपल हैव नेगेटिव कनोटेशन। बट हेज फंड में जहाँ लिवरेज अलाउड नहीं कर रहा है रेगुलेटर, विच इज़ वेरी मैच्योर थिंग, ओके, तो आपका रिस्क कम हो गया, आपका लिवरेज का एंगल नहीं है और सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। इससे बेस्ट प्रोडक्ट हो नहीं सकता फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म। मेक सेंस। तो अगर मान लो कि आगे आने वाले कुछ सालों में अगर 40-50% हो गया SIF का एक्टिव इक्विटी AUM में, तो आपको लगता है म्यूचुअल फंड वगैरह कमोडिटाइज हो जाएंगे काफ़ी? नहीं, देखिए, कभी भी म्यूचुअल फंड कमोडिटाइज नहीं हो सकते। ये एक कितना भी आप AI वर्ल्ड में रह लो, AI बिल्ड कौन करता है? ह्यूमन बींग्स ही बिल्ड करते हैं ना। तो ये एक इंडिविजुअल स्किल सेट होती है। ओके, वो देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप एजुकेशन का शॉर्टकट है, आप कोई फास्ट ट्रैक में एजुकेशन ले सकते हो, ओके, आप क्रैश कोर्सेज कर सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो, आप जल्दी सीख सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मेरे को 33 साल हो गए बाजार में, तो वो एक्सपीरियंस हमको हेल्प करता है। हमने बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज होते हुए देखा है, मार्केट में कैसा साइकिल्स प्ले आउट हुई, वो एक्सपीरियंस आपको, आप वो AI में आप बैक टेस्टिंग में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन उसको डिफाइन कितना बारीकी से आप करते हो वो आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है। तो ये म्यूचुअल फंड कभी भी कमोडाइज नहीं हो सकता है। आपका ये पैसिव प्रोडक्ट नहीं है जो कमोडाइज है कि आपको रेप्लिकेट करना है खाली। जब एक्टिव मनी मैनेजमेंट हमेशा एक मनी मैनेजर की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या कोई इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो और मनी मैनेजमेंट अगर मैं बिजनेस बात करें ग्लोबली तो इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सक्सेसफुल, ओके, इंडिविजुअल्स आर सक्सेसफुल। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट में आपको इंस्टीट्यूशन की जगह इंडिविजुअल, आप क्यों फंड मैनेजर की बात करते हो, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं करते हैं। अच्छा, वो फंड मैनेजर ने रिटर्न दिया, करेक्ट, तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है वो, इसलिए वो कभी भी कमोडाइज नहीं होगा एक्टिव मनी मैनेजमेंट। गॉट इट। और SIF के भी टाइप्स होते हैं, आई थिंक देयर आर वेरियस टाइप्स। तो 25% आप बोल रहे हो कि नेकेड शॉर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे आई थिंक फिक्स्ड इनकम होंगे या फिर देयर विल बी दूसरे एसेट्स होंगे। ये डिपेंड करता है कैसे। अभी जैसे सेबी ने हम लोगों को 7 तरह का SIF अलाउड किया है, जिसमें 3 इक्विटी हैं, 2 हाइब्रिड हैं और 2 डेट के हैं। हम लोगों ने हाइब्रिड और डेट का भी, वो तो फर्स्ट टू लॉन्च इंडिया SIF, ओके, तो हमने 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च किए, ओके। तो ये अर्ली किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, हम लोग हमारे पूरे 5 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ओके। हर प्रोडक्ट का स्पेशल थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में आपको फ्लेक्सी कैप की तरह है, तो हम उसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप प्लस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ओके। दूसरा हाइब्रिड प्रोडक्ट है, कुछ लोग आर्बिट्राज प्लस चला रहे हैं उसको, कोई FD प्लस चला रहा है, हम लोग उसको बोलते हैं ये BAF प्लस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे हम लोग BAF चलाते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें 35-40% का इक्विटी एक्सपोजर होता है, उसी तरह से हम इस प्रोडक्ट को चलाते हैं, ओके। फिर आपका मिड और स्मॉल है, तो इस कैटेगरी में सेबी ने हमको स्मिड कैटेगरी दिया है, स्मॉल और मिड कंबाइन करके, जो अभी तक म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। तो स्मिड विथ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो हमारा बीटा अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर मैं आप बोलूँ कि मिड एंड स्मॉल पोर्टफोलियो में किसी को कम रिस्क लेना है तो स्मिड लॉन्ग शॉर्ट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ओके। फिर आता है हमारा एक्टिव एसेट एलोकेटर, जैसे म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट है, तो ये मल्टी एसेट प्लस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ओके। तो इसके अंदर हम शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूचुअल फंड में हम हेज कर सकते हैं, ट्रू हेज कर सकते हैं, हम इंडेक्स के थ्रू हेज कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट नहीं कर सकते। नेकेड शॉर्ट हमको म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है, जो SIF में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो नया कंसेप्ट है, थोड़ा
लोगों को समझने में समय लगेगा, बट ये पिकअप हो जाएगा। और आई थिंक अगर मान लो किसी को 50% ऑफ म्यूचुअल फंड्स में डालना है, 50% और एक SIF में डालना है, तो मान लो कि उसके पास 50% जो है एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है पैसा, जो दूसरा 50% है वो किस टाइप के SIF में डालना चाहिए उसको? देखिए, वो अगर इक्विटी सेंट्रिक इन्वेस्टर है जिसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, उसको जैसे उसने फ्लेक्सी में डाला है, तो हमारा जैसे कॉन्ट का क्यूसिफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है, वो फ्लेक्सी कैप जैसा ही है विथ एडिशनल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, तो वो आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव लोगों को हमेशा बोलते हैं कि आप हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में जाओ, जैसे हमारा, और मैं हाइब्रिड में भी मल्टी एसेट को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि ऐसे मनी मैनेजर हमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसके अंदर। ओके, तो कॉन्ट हमारा जो मल्टी एसेट फंड है, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट एक्टिव एसेट एलोकेटर प्रोडक्ट। ओके, इसमें जाइए, इसमें एक तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, आपको फ्लेक्सी कैप की तरह मुझे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, सेक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट कैप की फ्लेक्सिबिलिटी है, ओवर एंड अबव मुझे एसेट क्लास की फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मेरे को सिल्वर अच्छा लगता है तो मैं एक सिल्वर का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ले सकता हूँ इसके अंदर, तो वो एक हमको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो सर, सिंस जुलाई 2025 यू हैव एडेड 5 stocks in your portfolio. What was the one VLRT सिग्नल जिससे मतलब जिसने इन सारे स्टॉक्स को कनेक्ट किया? देखिए, कोई एक सिग्नल नहीं होता है। पहला बात, जैसे मैंने आपको बताया कि VLRT में वैल्यूएशन एनालिटिक्स को अगर हम 2 मिनट देंगे, जिसका हम लोग 1/3 वेटेज देते हैं, उसके अंदर भी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ओके, अगर हम उसको ड्रिल करेंगे तो और हम उसको डीप जा सकते हैं, हम उसमें अर्निंग मोमेंटम देखेंगे। ओके, या उसका परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है। अर्निंग मोमेंटम के अलावा हम देखते हैं कि पी एक्सपेंशन फेज में है कि पी कंप्रेशन के फेज के अंदर है। ओके, उसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उस स्टॉक का रिस्क एपेटाइट क्या है, उस स्टॉक का लिक्विडिटी कैसा है, उसमें लिक्विडिटी एनालिटिक्स क्या काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ का जब हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो हम सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, और जब स्क्यूनेस दिखती है कि अगर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक तरफ स्क्यूड होते हैं तो हमको कॉल लेने में आसानी होती है। उस तरह से हम लोग ये पूरा पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये फेयर नहीं होगा कि एक डेटा पॉइंट्स के, हम लोग बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी वेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं। ओके, और मल्टी डायमेंशन रिसर्च का एंगल रखते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसको हम कंबाइन करके मैथमेटिकली प्रोसेस करते हैं, फिर उसमें हमें जो डेटा जनरेट होता है उससे हम या मनी मैनेजर एक कॉल लेता है, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है। तो VLRT फ्रेमवर्क ये एल्गो नहीं है कि कोई हमने एल्गो बना दिया ऑटोमेटिकली होता है। ये हमारे लिए एक रिसर्च असिस्टेंट है, हमारे सिस्टम को, हमारे मनी मैनेजर्स को एक सपोर्ट करता है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में। ओके, तो हम लोग पूरा, हमारा एक सिस्टम है, इसे हम लोग इंटरनली यूज़ करते हैं क्वांटम माइन करके। तो हम लोग माइनिंग ऑफ डेटा, इसका नाम है क्वांटम माइन, कि पूरा डेटा का माइनिंग करते हैं। तो वो प्रोसेस करता है, वो पूरा VLRT फ्रेमवर्क हमारे क्वांटम माइन में प्रोसेस होता है। वहाँ से हमको हेल्प मिलती है कि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स जब दिखते हैं तो मनी मैनेजर को एक सपोर्ट, आपका रिसर्च असिस्टेंट है, आपकी सेक्रेटरी आपको हेल्प करती है ना, ऐसा हमारा एनालिटिक्स हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो VLRT फ्रेमवर्क हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जो एक मनी मैनेजर को कॉल लेने में हेल्प करती है, बट कॉल मनी मैनेजर ही लेता है। ओके, सिस्टम नहीं लेता है, सिस्टम आपको खाली असिस्ट करता है। गॉट इट। तो सर, जैसे कि आप बोलते हो कि आपके अकॉर्डिंग NBFCs का आउटलुक इज़ बेटर देन बैंक्स, बट मान लो कि डोंट यू थिंक कि स्टॉक्स लाइक से कैप्री ग्लोबल दे हैव हायर क्रेडिट रिस्क कंपेयर्ड टू बैंक्स लाइक HDFC या फिर ICICI? देखिए, पहली बात आपने बोला मान लो का तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे सिस्टम में। ओके, जो डेटा है वो है। ओके, और हम लोग किसी इंडिविजुअल एनालिस्ट की ओपिनियन को भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। ओके, हम लोग एक डेटा पॉइंट्स को समझते हैं कि इसका क्या कोरिलेशन है, हिस्टोरिकली इस डेटा पॉइंट्स को कैसे रीड करना चाहिए, इसका कैसा इम्पैक्ट आता है। जब हम वो चीज़ समझते हैं तो आपके जो ह्यूमन बाइसेस होते हैं वो हम हटा देते हैं। ओके, एनालिसिस के अपने बाइसेस होते हैं, ये कंपनी बहुत अच्छी, ये तो छूना ही नहीं है, ये अनटचेबल है। ओके, हम कॉम्बिनेशन के साथ जब डेटा देखते हैं तो हम एक्सट्रीम चीज़ पे देखते हैं। जब मोस्ट हेटेड जोन में स्टॉक होता है तो हम एग्रेसिवली बाय करते हैं। ओके, जहां पब्लिक ने गिव अप कर दिया, वॉमिट कर दिया, छूना ही नहीं है, पीपल गेट दैट फीलिंग ये तो अनटचेबल है। ओके, वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि हमारा रिस्क कम होता है। और जब कभी स्टॉक मोस्ट एडमायर टेरिटरी में आ जाता है, सबको अच्छा लगता है, सबका डार्लिंग है वो स्टॉक। ओके, वो साइकिल का पीक होता है। ओके, उस तरह की अपॉर्चुनिटी जब हमें दिखती है, ओके, तो हम अपना एक्सपोजर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या कट करते हैं। कभी कभी वो मैडनेस थोड़ा एक्सटेंड भी होती है। ओके,
लेकिन अगर आप कोई स्टॉक में अर्ली हो, आपने अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई किया और आप अर्ली स्टेज पे थोड़ा टॉप से थोड़ा भी अर्ली निकल गए, तो उसमें हमको रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि हम दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, लोअर एंड पे। तो ये एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है अरे मैंने जल्दी बेच दिया, वहाँ से 30% और चल गया। भाई अगले को भी रिस्पेक्ट दो, जो 30% चलने के बाद आपका माल तो बिका ना, तो जिसने माल लिया उसको थोड़ा तो कमाने का मौका दो, तो ही आपको एग्जिट मिल रहा है। अगर वो नहीं कमाएगा तो आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो इन्वेस्टर नीचे के बॉटम में कैपिचुलेट हो रहा है, तो हमको लिक्विडिटी भी तो दे रहा है ना, वो वॉमिट कर रहा है तो हमें लिक्विडिटी साइज में मिल रहा है ना लेने के लिए। तो हमको दोनों तरीके से सोचना है, ओके, कि भाई देखिए हमेशा लिक्विडिटी की हम बात करते हैं ना, तो लिक्विडिटी हाईएस्ट कब होती है? तो टॉप पे होती है, बॉटम पे होती है। जब एक्सट्रीम यूफोरिया होता है तो लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, और एक्सट्रीम पेसिमिज्म होता है, मैक्सिमम कैपिचुलेशन होता है, तब भी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपोजिट साइड हो तो आपको दोनों तरफ से एडवांटेज मिलता है। और हाउ टफ इट इज़ टू प्रिडिक्ट, मान लो एग्जिट लिक्विडिटी, जैसे कि एक स्टॉक है मैराथन नेक्सटजेन है, तो इट इज़ ए स्मॉल कैप, यू हैव लाइक गुड होल्डिंग इन दैट, तो वहाँ पे आपको एग्जिट लिक्विडिटी देखना वुड बी। देखिए अब आपने जो एग्जांपल दिया है ना, उसका पर्सपेक्टिव समझते हैं। हमारा पोर्टफोलियो में सब तरह के इन्वेस्टर्स हैं, सब लोग इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हम कुछ 20% ऑफ द पोर्टफोलियो देखते हैं एब्सोल्युटली डिकेडल अपॉर्चुनिटी, ये 10 साल में क्या बड़ा हो सकता है। तो कुछ स्टॉक हमको डिकेडल अपॉर्चुनिटी में क्वालिफाई करते हैं। कुछ स्टॉक हम लोग ढूंढते हैं कि 5 साल में क्या हो सकता है इसमें। कुछ स्टॉक हम देखते हैं कि भाई 3 साल में क्या रिटर्न दे सकता है। कुछ स्टॉक हम देखते हैं कि 6 महीने में क्या होगा, और ये मेरे को 1 क्वार्टर में क्या होगा। ओके, तो हम जो पूरी बास्केट पोर्टफोलियो की बनाते हैं, तो ये एक दूसरा जो मिथ है ना कि लॉन्ग टर्म, हर चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है। कुछ हमारे लिए डिकेडल भी है, हम 10-10 साल का व्यू भी लेते हैं, लेकिन 10 साल का व्यू 100% पोर्टफोलियो पे नहीं लेते हैं, 20% पोर्टफोलियो पे लेते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई रिडम्पशंस आया, कुछ आया, तो मैं 20% पोर्टफोलियो मेरा एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म है। तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि हर चीज़ अगर हम बोलें कि हम तो 100% लिक्विड स्टॉक लेंगे तो आपका रिटर्न्स कम आएगा, और आप बोलोगे मैं 100% में इलिक्विड स्टॉक लेके बैठ जाऊँ, इसका रिटर्न तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मुझे रिडम्पशन आ गया या तो मेरे पास एग्जिट ही नहीं है। तो हमको उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। ओके, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्टमेंट होराइजन को डाइवर्सिफाई करते हैं, और हम अपने रिस्क पैटर्न्स को भी डाइवर्सिफाई करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क स्टॉक्स होंगे, जिनका मतलब बीटा हाई लो होगा, और इन्वेस्टमेंट होराइजन, कोई चीज़ मैंने 10 साल के लिए ली है, कोई चीज़ मैंने 5 साल के पर्सपेक्टिव से ली है कि भाई ये चीज़ आज हो रही है इस कंपनी में, इसको रिजल्ट आते आते 5 साल लगेंगे, तो हम 5 साल का पर्सपेक्टिव रखेंगे, कुछ 3 साल का रखेंगे, कुछ हमारे थीमेटिक थीम्स हम लोग प्ले करते हैं कि 1 क्वार्टर की अपॉर्चुनिटी अभी दिखती है, इसको प्ले कर लिया। तो हम एक कॉम्बिनेशन में देखते हैं। मैं कभी भी कोई चीज़ को ये नहीं बोलता कि हमारा सारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म है, या हमारा सारा पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म है, या हमारा सारा पोर्टफोलियो मीडियम टर्म है। नो, कॉम्बिनेशन है। सर, लिक्विडिटी को आप प्रेडिक्ट भी करते हो यूजिंग पास्ट डेटा और समथिंग? आई थिंक सेंटिमेंट ऑल्सो। देखिए लिक्विडिटी, आप जो लिक्विडिटी समझ रहे हो वो लिक्विडिटी हमारे लिए नहीं है। आप समझ रहे हो लिक्विडिटी कितना वॉल्यूम होता है, आपका लिक्विडिटी पे उतना फोकस है। हमारा लिक्विडिटी एनालिटिक्स बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। ओके, हमारा लिक्विडिटी जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है वो एक कंपोनेंट है। ओके, और भी तरह का लिक्विडिटी एनालिटिक्स हम लोग देखते हैं। ओके, तो उसको बहुत मायोपिक व्यू से मत खाली आप करो कि ये ट्रेड के हिसाब से मत देखो कितना वॉल्यूम है, ये लिक्विडिटी एनालिटिक्स ये नहीं है। लिक्विडिटी एनालिटिक्स बहुत डीपर कंसेप्ट है, उसको समझने में थोड़ा समय जाएगा। वो उसको एक लार्जर कैनवस में आप देख सकते हो तो समझ पाओगे। आप खाली इस शेयर्स में कितना प्रेडिक्ट करें कल कितना वॉल्यूम होगा, तो वो हमारी भी कैपेबिलिटी नहीं है। वो एक उसका कंपोनेंट है, उसके पास और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। सर, कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग अगले डिकेड का इंडिया का नेक्स्ट 10x स्मॉल कैप कहाँ से आएगा? लाइक सेक्टर, कैटेगरी और समथिंग विच इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन। ये भी बहुत एकेडमिक क्वेश्चन हो जाता है। ओके, और रियर विल मेरे में हर चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ दिखती है। 10 साल बाद बताएंगे अरे हाँ ये चीज़ हुई थी। करेक्ट, ये कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता, और जो करता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ओके, ये हुनर है ही नहीं किसी के पास कि 10 साल, इतना डायनेमिक वर्ल्ड है, 10 साल बाद क्या होगा किसी को आज क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको ग्लिम्सेस मिलते हैं।
ओके कि हम किस चीज़ पे हमने बोला कि ये गेम क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। जब हमको डेटा पॉइंट दिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ओके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। जैसे मैंने बोला प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज अ प्रोबेबिलिस्टिक साइंस, डिटर्मिनिस्टिक साइंस नहीं है। ये सर्टेनली होने वाला है, कोई भी नहीं बता सकता। ओके बट 72% बेस्ट ऑफ द लेजेंड नहीं बता पाए कभी चीज, ठीक है। बट हम लोग जब प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं तो हमको एक ग्लिम्सेस मिलते हैं। जैसे अगर आप आज की बात करें, हम लोगों ने वी वर अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन डेटा सेंटर। ओके अब इंडिया में एआई का अपॉर्चुनिटी नहीं था। ओके तो हमको इतना समझ में आया कि डेटा सेंटर का अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह करंट गवर्नमेंट का और सम ऑफ द इंडस्ट्रीज का फोकस है रिन्यूएबल पे, 2031-32 आते हमारा रिन्यूएबल सिचुएशन बहुत बड़ा होगा। ओके आप आज लोग चाइना की बात करते हैं, 6 साल बाद लोग इंडिया की भी बात करेंगे कि इंडिया का रिन्यूएबल कितना बड़ा है। तो हमने एक डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी देखी। उसमें सबसे बड़ा क्या था, पावर सेक्टर था। ओके उसमें आपको ऑप्टिक फाइबर है, उसके अंदर आपका जेनसेट्स आते हैं, उसके अंदर केबल्स आएंगे, उसके अंदर टेलीकॉम कंपनीज आएंगी, उसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज आएंगी। ओके रियल एस्टेट तो बाई प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, सबसे बड़ा कंपोनेंट पावर था। तो हमने वो थीसिस को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20%, 25% पावर में ओवरवेट किया। ओके तो उस तरह से हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे 10 साल की क्या थीम होगी, तो मेरे पास आंसर ऑनेस्टली नहीं है कि 10 साल बाद मैं आपको आज नहीं बता सकता कि 10 साल बाद क्या होगा। वो मेरे को लगता है इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में एआई गॉड भी नहीं बता पाएगा कि क्या होगा। सर कमिंग टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस पॉडकास्ट, रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर नहीं, वैसे आपको एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लेसन द मार्केट्स एवर चार्ज्ड यू इन वन लाइन। पेशेंस। A market truth you believe deeply at 30 that you no longer believe at 55. Because we live in dynamic world. If predictive analytics had existed in 1992 when you started, would you still have become the investor you are today or someone completely different? It is difficult to answer, frankly speaking. The one moment in your career when you knew you were wrong, but the market hadn't told you yet. So it's not one moment. These are regular moments in life, okay? When you are ahead of the curve, and sometimes you have to pay a price of being too early also. Okay, so market penalize you on the both the sides. If you're too early, sometimes you have a cost to pay, and if you're too late also, then also market penalizes you. So it's a tricky situation, and you have to keep attempting and see the outcome. If you could see only one data point about the Indian market every morning and nothing else, what would it be? See, I think if I have to look at one thing, it cannot be just one data point. Okay, rather I will say it will be one matrix will be macro data points. So which obviously has big list, but something which I look at every day morning on regular basis is how the macros are changing globally and how the macro for India. So macro picture gives me, if you want to call it one analytical tool, then macro give me much better perspective than looking at the company specific or micro specific. Okay. And if you had to choose one variable from your VLRT framework, what will that be? No, it cannot be just one variable. It has to be combination. Okay. One variable is only timing analytics, which is a further function of all three analytics. Okay. The timing is everything, and that's why we say timing is key. And for us, timing is everything, and everything else is conjecture. 20 years from now, when someone writes the history of Indian asset management, what's the one sentence you want next to your name? Dynamic style of money management. Pioneer in dynamic style of money management. Makes sense. Cool. Thank you so much, sir, for doing this. Thanks for coming. And thank you so much, everyone, for watching this video. If you guys have any feedback, do let us know in the comment section, and do subscribe to the channel. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.